नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का इस प्रोग्राम में डॉक्टर स्पीक, जिसमें हम लगातार बात करते हैं डॉक्टर से, एक्सपर्ट से और आपके सवालों के जवाब लेते हैं। हम जानते हैं कोविड-19 महामारी को लेकर आए दिन जिस तरीके से तस्वीर बदल रही है, उसको देखते हुए तमाम सवाल आप लोगों के जहन में भी होते हैं। तो वो सवाल आप हमसे डीडी न्यूज के फेसबुक पेज पर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही फोन लाइन पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब लेंगे हमारे मेहमानों से। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा, मेरे साथ है मार्कलिन। Namaskar. Yes, indeed. And so we are already in unlock 4 and we have almost, getting back to the old normal in a sense, but we have to still keep those precautions in mind. Social distancing, wearing masks, washing our hands, because that is the safest vaccine as of now until we get the real vaccine. So let's talk to our doctors. Your numbers are on the phone. The numbers are flashing across the screen. Our doctors who will be in consultation today. We have Dr. Geeta Kampani, who is a consultant and professor of Department of Medicine at Safdarjung Hospital, and also Dr. Naresh Gupta, medical consultant at the Maulana Azad Medical College. Thank you very much for being with us. So, well, we can start with Dr. Gupta, Naresh Gupta. How do you look at, the situation now? Because people seem to be having a lot more confidence coming out, but the numbers are increasing in real terms. Of course, if we take the number of tests that we are doing, which are over 11 lakh a day, and if we only have about 80,000 of them testing positive, that may be relatively, in a context, it may not look so dangerous. But the situation is that we are quickly reaching 40 lakh total cases. Isn't that a matter of concern? Yes, Mark, you are right. It's a matter of concern. It's a matter of concern because the numbers is going up in the country. In fact, it has gone up to the highest level if you compare it with any other country. Every other country tends to be falling down in terms of numbers, by and large, the large countries, leave aside the small ones like Israel. So the numbers going up is one matter of concern. The other matter of concern is in places like Delhi, which had shown a downward trend for past several weeks, more than a month, have seen a resurgence. The numbers have gone up. Now, why have the numbers gone up? We need to find out. There has always been talk in the past couple of months that there are these mutations in the 614 site, which goes to from D to G, and that causes a higher spreading power of the virus. Yes. Whether it is there or whether it is the clustering, like Delhi when it opened up, maybe there are small clusters that are opening up where persons are gathering around and they're spreading the number. The numbers that are a matter of concern also because the positivity rate in Delhi has also gone up. So I think we cannot afford to let our guards down, not for times to come, and I think not forever. All the time we should stick with it. But the higher numbers indicate that the disease is still with us and it is spreading. The only saving grace is that mortality for the persons who are dying from it has not gone up so much. जी, गीता कंपानी जी, यहाँ पर आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे कि अब हम जानते हैं कि गतिविधियां तो ज्यादा से ज्यादा खोली जा रही हैं, साथ ही मेट्रो भी शुरू होने वाली है और उसको लेकर हालांकि ये गाइडलाइंस लगातार दी जा रही है, दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, मेट्रो की तरफ से भी सारे साइन बोर्ड्स लगा दिए गए हैं, लेकिन ये एक नया अनुभव होने वाला है लोगों के लिए कि अब मेट्रो में अगर ट्रेवल करना है तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। आप क्या कहना चाहेंगे सभी यात्रियों से? देखिए, ऐसा है, जब मेट्रो शुरू होगी डेफिनेटली ये तो एक नई बात है और जैसे हम अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की बात कर रहे थे और हैंड सैनिटाइजेशन की बात कर रहे थे, तो जितना हो सके तो मास्क का प्रयोग तो जरूर करना है, क्योंकि मास्क के प्रयोग से एक दूसरे से संक्रमण कम से कम होता है। बाकी जितनी हो सके चीजों को कम हाथ लगाइए, हैंड सैनिटाइजेशन को मेंटेन करिए। बाकी सैनिटाइजेशन पे मेट्रो के अधिकारी भी ध्यान दे रहे हैं ताकि जो वायरस चीजों को छूने से फैल सकता है वो ना फैले। तो लेकिन हम लोगों को भी बहुत ध्यान देना है कि हम कम से कम चीजों को छुएं और आपस में मास्क डाल के ही ट्रैवल करें ताकि इस आपस में संक्रमण कम से कम हो।
बिल्कुल, इस वक्त हमारे पास पुणे से रूपा का मैसेज है जो ये जानना चाहते हैं नरेश जी कि सैनिटाइजेशन की बात लगातार की जा रही है और जाहिर है कि जहां पर आपको साबुन या पानी नहीं है वहां पे आपको सैनिटाइजर से ही अपने आप को इस संक्रमण से रोकना है, तो उसका प्रयोग करना जरूरी है, लेकिन कितना सेफ है ये सैनिटाइजर भी? देखिए, ऐसा है कि जब हम सैनिटाइजर की बात करते हैं उसका बेसिक एसेंशियल कंपोनेंट उसके अंदर होता है अल्कोहल, 70% अल्कोहल, और वो वायरस का जो कवर है उसको पसंद नहीं आता है, वायरस एक तरह से टूट जाता है। और ये चीज सोप और वाटर से भी होती है, डिटर्जेंट भी उसके कवर को खा जाते हैं। तो अपने आप में ये सेफ है। सिर्फ आपको ये देखना है कि जब आप इतने % अल्कोहल यूज करते हैं, इसमें कौन सा अल्कोहल यूज करा है, आइसोप्रोपाइल यूज करा है, कौन सा अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल इज पॉइजनस, यू कांट यूज इट, ग्लाइकोल कैन नॉट बी मिक्स्ड इन इट। तो ममता जी, उसमें ये ध्यान करना होगा कि उसमें कोई चीज ऐसी लाभदायक है जो कि गलती से या जाने अनजाने में उसके अंदर आ गई है। दूसरा ये है कि जब आप उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, अल्कोहल जो है उड़ जाता है हवा में, वो अंदर भी जाता है, और जब उड़ता है तो हाथ को ठंडा और ड्राई छोड़ के जाता है, इसीलिए उसमें कुछ मोलिएंट्स या कुछ ऐसा वैसलीन टाइप लगाते हैं अंदर जिससे कि हाथ सूखे नहीं। तो तीसरा ये है कि जो सैनिटाइजर है उसका असर आने में ज्यादा समय लगता है। जो साबुन पानी है उसका असर 20 से 30 सेकंड में आ जाता है, वायरस को खत्म कर देता है। लेकिन जो सैनिटाइजर है उसको कई मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं। तो उसको आपको लगा के अच्छी तरह से क्वांटिटी 2 बूंद से काम नहीं चलेगा। उसमें ऐसा होना चाहिए कि जहां पे आप सैनिटाइज कर रहे हैं वो काफी सारा हो और वो चला जाए। और बाकी अगर आप बहुत ज्यादा Dr. Naresh Gupta, I'd like to stop you because we have a caller on the line, and they sometimes break off after some time. But Saeed is calling from Jammu and Kashmir. Saeed, आप अपना सवाल पूछिए. गुड आफ्टरनून Yes, good afternoon. सर, मेरा कुछ डॉक्टर साहब से कोविड एक बार ठीक होने के बाद क्या फिर से होता है? जी डॉक्टर जी देखिए, ऐसा है, अभी हमें इस वायरस के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है कि ये डेफिनेटली थोड़ी देर के लिए इम्यूनिटी तो रहेगी, कुछ महीने के लिए, मे बी 1 साल के लिए इम्यूनिटी रहेगी, लेकिन जब तक आईजीजी एंटीबॉडी सीरम में रहती हैं तब तक तो नहीं रहेगी। उसके बाद इम्यूनाइजेशन होपफुली आ जाएगी हमारी कंट्री में, तो हम वैक्सीन आ जाएगी तो फिर उससे हम इम्यूनाइज कर पाएंगे। लेकिन दोबारा इन्फेक्शन इससे हो सकेगी, ये म्यूटेट करेगा, दूसरा स्ट्रेन आएगा, उससे हमें इन्फेक्शन होगी कि नहीं, ये आगे फ्यूचर में देखना होगा। लेकिन अभी हमें इसके बारे में पूरा पता नहीं है कि दोबारा इन्फेक्शन हो पाएगी कि नहीं। लेकिन फिलहाल इन्फेक्शन होने के बाद एक बार कुछ महीनों तक तो डेफिनेटली आपको इन्फेक्शन दोबारा नहीं होगी। Right, and to contain the spread of the virus, Dr. Naresh Gupta, we talk about herd immunity. Now, already we have sero surveys that suggest that quite a few people have been infected. So, if we talk about immunity, we have at least 3 months immunity of quite a large section of society. But once we get the vaccine, then let's say, take about a month, we'll have about 20% more increase. Would we have herd immunity by, let's say, a month's time after the vaccine? I think herd immunity let us see. Yeah, okay, Dr. Naresh Gupta is speaking, ma'am. Yeah, okay. I'm sorry. From Ayodhya. Yeah. Go ahead, sir. यहाँ पर डॉक्टर साहब आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन एक कॉलर अयोध्या से जयप्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका पहले सवाल ले लेते हैं। जयप्रकाश जी, आपका क्या सवाल है? जी, हेलो Yes, जी, Jayprakash, जी। please ask your question. जी, जयप्रकाश मैं बोल रहा हूँ अयोध्या से। मुझे गले में खिचखिचाहट है, जैसे खांसी नहीं आती लेकिन हल्की सरसराहट है, क्या ये कोविड-19 का परिचायक है? डॉक्टर नरेश, आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए जयप्रकाश जी, ऐसा है, कितने समय से आपको ये हो रहा है? अगर ये हर मौसम में होता है, महीनों से हो रहा है, तो ये कोविड नहीं है। अगर आपको पहले कोई तकलीफ नहीं होती थी गले की, कोई खराश, कोई खांसी नहीं होती थी, और 1, 2, 3 दिन से लग रहा है कि आपको गले में खराश हो रहा है, तो ये कोविड हो सकता है। उसमें आप सोचिए कि आप ऐसी कोई भीड़ भड़ाके वाले इलाके में गए थे,
या जहां से ये लेके आ सकते हैं या किसी को पॉजिटिव हुआ हो। तो ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको अभी आया है कि ये पहले भी रहता था। जी, जयप्रकाश जी हमारे साथ अभी जुड़े नहीं हैं, लेकिन ये समझने वाली बात है डॉक्टर साहब जो आपने बताया है अभी कि कुछ ऐसे लक्षण तो हर मौसम में बदलने के साथ भी हो जाते हैं, लेकिन जाहिर है कि जिस तरीके से कोविड-19 का माहौल बना हुआ है उसको लेकर ये शक शुबा जरूर रहता है कि हो सकता है कि ये कोविड-19 का ही सिम्टम हो। ऐसे में डॉक्टर कंपानी, अमूमन लोगों के बीच में ये संदेह, ये आशंका टेस्टिंग को लेकर बनी रहती है कि कब जाएं हम टेस्ट कराने, और ज्यादातर लोगों के अंदर ये भी भय होता है कि संक्रमण से बचना है तो टेस्टिंग के लिए भी कम से कम ही कोशिश की जाए तो बेहतर है। लेकिन आपको लगता है कि ये भय सही है? देखिए, टेस्टिंग के लिए अगर आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं, सिर्फ गले में खराश होना, और जबकि अगर आपको खराश हर साल इसी महीनों में होती है या एलर्जीज की प्रॉब्लम है, तो फिर टेस्ट के लिए जाना जरूरी नहीं है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संक्रमण में आए हैं जिसको कोविड इंफेक्शन हुई है, या आपको थोड़े जिस्म में दर्द हो रही है, या हल्का फुल्का बुखार हो रहा है, जुकाम है, खांसी हो रही है, तो फिर आप को टेस्ट करा लेना जरूरी है। और ऐसे टेस्ट में आरटीपीसीआर तो गोल्ड स्टैंडर्ड है ही है, लेकिन उसके अलावा एंटीजन टेस्ट हम करते हैं। एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो वो कंफर्मेटरी है, लेकिन अगर नेगेटिव आता है और शंका हमारी ज्यादा है कि ये कोविड-19 इन्फेक्शन हो सकती है, तो फिर एंटीजन टेस्टिंग अगर नेगेटिव आती है तो हमें आगे आरटीपीसीआर कराना पड़ता है। Dr. Kampani, people also take a number of blood tests for other reasons, and now there is the possibility of doing an antibody test also at various laboratories. Would you advise them, to give their sample also for that test, just to see if they have come in contact with the virus? See, antibody testing is only to see whether you have there are two types of antibodies, IgM and IgG. Yes. IgM indicates recent infection with the virus, and that persists for about, say, 14 to 21 days. After 21 days or so, the IgG antibody appears, and that will last for a few months. How many months we don't exactly know, but the IgG antibodies indicate that the person has had a past infection with coronavirus. So just to detect antibodies, I will not advise that they should get a test done unless we do IgG antibody testing and the level of IgG antibodies prior to giving plasma to another patient in plasma banks. Otherwise, I will not advise that you should go to the laboratory especially to get a antibody testing done to see whether you have antibodies or not. Of course, we are doing sero surveys at various places are being done, and over there they are doing the antibodies to see how many individuals have been immunized, what percentage of the population. That is a part of our sero surveillance survey. डॉक्टर कंपानी इस वक्त हमारे साथ दिनेश जुड़ गए हैं सीकर से, जो सवाल पूछना चाहते हैं। दिनेश, क्या है आपका सवाल? मैं ये पूछ रहा था 22 तारीख को कोविड पॉजिटिव हुआ था और 26 को। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मैं ये पूछ रहा था मैं 22 को कोविड पॉजिटिव हुआ था जी, और 26 तारीख को रिपोर्ट में नेगेटिव आया। उसके बाद में 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन कर दिया जी। तो अभी ऐसा हो सकता है क्या मेरे से कोई और संक्रमित हो सकता है क्या? डॉक्टर नरेश, क्या कहेंगे आप? मैं गांव में ही काम करता हूँ। गांव जी, दिनेश जी क्या बोल रहे हैं आप? किस तरह का काम कर रहे हैं? किस तरह का काम कर रहे हैं आप? डॉक्टर नरेश, आप जवाब दे सकते हैं उनका। 14 दिन क्वारंटीन के बाद वो कह रहे हैं कि क्या 14 दिन इस वक्त क्वारंटीन में है, क्या अभी भी वो इस संक्रमण को फैला सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि दिनेश जी ने जो बताया उसमें ये जानना जरूरी है, अगर दिनेश जी ठीक हो गए हैं, कोई बुखार नहीं है, कोई खांसी नहीं है, कोई निमोनिया नहीं है, तो क्वारंटीन के 14 दिन के बाद उनका चांस जो है स्प्रेड करने का नहीं रहता है, ना के बराबर रहता है। अगर निमोनिया हो जाता है, तकलीफ रहती है, बुखार रहता है, तो वो 14 दिन के बाद भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो अक्सर 14 दिन के बाद कोई स्प्रेड नहीं करेगा अगर वो ठीक हो गया है, यही मानना है और यही हर कोई जानता है।
लेकिन शुरू के जो दिन होते हैं उसमें वो स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे 22 तारीख को उनका हुआ था, तो 22, 23, 24, 25, 26 को ये कर सकते थे। अब अगर ये ठीक महसूस कर रहे हैं पिछले 5 दिन से 7 दिन से, तो इनका कोई स्प्रेड करने का अंदेशा नहीं। जी डॉक्टर नरेश, इससे जुड़ा एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सीरो सर्वेज ये दिखा रहे हैं कि हमारे शहरों में बहुत बड़ी तादाद एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की है, यानी उन मरीजों की, मरीज नहीं बोलना चाहिए लेकिन संक्रमित लोगों की है जो सिम्टम्स नहीं दिखा रहे, लक्षण नहीं दिखा रहे, लेकिन ये एसिम्प्टोमेटिक लोग कहां तक संक्रमण फैला सकते हैं? ये ममता जी आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। ये जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं ये संक्रमण उतना ही फैला सकते हैं जितना कि गले की खराश वाले। दोनों के अंदर रिसर्च करी गई कि कुछ एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, उनके गले में देखिए कितना वायरस है, जो गले के खराश वाले उनके देखिए कितना वायरस है, दोनों में उतना ही वायरस। और जो सीरो सर्वे है इसमें बड़ी एक महत्वपूर्ण बात आई है। देखिए जो तबका सबसे कम इन्फेक्ट होता है उसमें 2 ग्रुप माने जाते हैं, एक 18 साल से नीचे और एक महिलाएं। पुरुष जो है ट्वाइस एज लाइकली, मतलब 1/3 महिलाएं होती है, 2/3 पुरुष होते हैं। सीरो सर्वे में आया है कि पुरुषों में पॉजिटिविटी है 28%, महिलाओं में है 32%, जबकि आधी होनी चाहिए थी। और जो 18 साल के नीचे हैं उनकी है 35%। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महिलाएं और यंग लोग जिसमें इतनी सीरो पॉजिटिविटी है उसमें ज्यादातर वो एसिम्प्टोमेटिक रहे, और जब वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं उनको पता ही नहीं चलता है तकलीफ है, उनके पड़ोसी को नहीं पता चलता है, उनके फैमिली मेंबर को नहीं पता चलता है। और इसलिए जब तक ये कोविड हमारी सोसाइटी में, समाज में मौजूद है, हर किसी को ये मान के चलना चाहिए कि मैं या दूसरा कोविड के वायरस हो सकता है कैरी कर रहा हूं। इसलिए जब भी पब्लिक प्लेस में जाएं जहां सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन भी करें, वहां पे आप मास्क जरूर लगाएं। और बाकी जो सैनिटाइजेशन और हैंड हाइजीन और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और कॉफ एटिकेट्स हैं वो तो आप करेंगे ही, लेकिन ये एसिम्प्टोमेटिक केस से फैलने की बहुत ज्यादा प्रक्रिया होती है। और अगर आप कभी भीड़ भड़ा के इलाके में चले जाएंगे तो और ज्यादा वो फैलाएगा। यानी सबको ये ध्यान रखकर चलना जरूरी है कि ये मानकर एहतियात बरतिए कि जो भी दूसरे लोग हैं आपके आसपास वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ शिवजी पटना से जुड़ गए हैं। जी शिवजी, अपना सवाल पूछें। माफी चाहते हैं, सीपी वर्मा जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्मा साहब, क्या है आपका सवाल? उनसे लाइन दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। Right, indeed. So we Dr. Kampani, let's talk a little bit about vaccines, because people are waiting for vaccines, and there are so many candidates that are in the running, and people are tracking and seeing which one is likely. We know that there are 3 candidates also in India, but we don't seem to have any reports that there are negative reports. So can we actually be rather positive about having a vaccine soon? Yeah, I think we are in the process, and maybe early next year the phase 3 trials have started, and maybe early next year we should be having a vaccine, and at this rate it should be there by early next year. जी, यानी ये उम्मीद की जा सकती है। डॉक्टर नरेश, एक बात जो अमूमन ये कहा जाता है या कई जगह पर ये बात सुनने में आती है कि अगर हमें संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होना है तो कोई ड्यूरेशन होनी चाहिए, कुछ पर्टिकुलर समय होना चाहिए जितने तक आप कांटेक्ट में आ रहे हैं। ये सवाल जाने से पहले एक लिसनर का सवाल ले लेते हैं। मां, In fact, we've got a caller, Om Prakash from Delhi is joining us. Om Prakash, आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। यस ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, हमें आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरी एज 80 years की है, क्या मैं पार्क में जाकर टी ब्रीजिंग कर सकता हूँ? डॉक्टर कंपानी। Yeah,
आप बिल्कुल जा सकते हैं पार्क में, लेकिन आप डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम और ये कपाल भारती जो है, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये बहुत अच्छी हैं, लंग्स के लिए भी अच्छी हैं और इम्यूनिटी के लिए भी अच्छी हैं। लेकिन आप ये बस ख्याल रखिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। जो आसपास कोई संक्रमित लोग, कई लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक, जैसे बोला गया, जिनको कोई संक्रमण के लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो वो लोग आसपास कम से कम 6 फुट का डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखिए एक दूसरे से। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए और मास्क का प्रयोग, जब आप डीप ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करिए, और जब आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तब आप सोशल डिस्टेंसिंग से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस लोगों से मेंटेन करिए। और जब आप घर के अंदर वापस आ जाते हैं तो आप हैंड सैनिटाइजेशन अच्छी तरह, हाथ को साबुन से हाथ को 30 सेकंड के लिए कम से कम धोइए और उसके बाद सैनिटाइज भी कर लीजिए एक आइसोप्रोपाइल 60% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से। जी डॉक्टर नरेश, इस वक्त फेसबुक पेज पर एक सवाल आया है। मोहित दलाल पूछ रहे हैं अपना सवाल और वो कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं कि जब वो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तब उन्हें क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे और एग्जाम सेंटर से वापस आने के बाद भी उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, एग्जाम सेंटर का जो कंसर्न रहा है, आपने देखा होगा बहुत डिबेट चले हैं, वो ये रहा है कि ये एक ग्रुप हो जाता है। मतलब कितना भी आप डिस्टेंसिंग करें, एक हॉल में, एक कमरे में, जहाँ भी है, काफी सारे लोग बैठते हैं। ये देखा गया है जहाँ पे ज्यादा लोग बैठते हैं और ज्यादा जगह से आए हुए हों, अलग अलग फैमिली से आए हुए, वहां पे संक्रमण का रिस्क बढ़ा रहता है। तो पहले तो जब ये जाते हैं उधर, पहले तो ये देखें कि ये अपना स्वस्थ हैं तभी जाएं। जिसको तकलीफ है, कोई थोड़ा बुखार है, गला खराब है, या वो कोविड के उसमें आया हुआ है, वो ये ना सोच के जाए कि मेरा 1 साल बेकार हो जाएगा अगर मैं एग्जाम देने नहीं जाऊं। अगर आप वहां जाएंगे और किसी और को फैल जाएगा तो कई लोगों के 1 साल नहीं, कई साल और जिंदगी भी बेकार हो सकती है। तो आप तभी जाएं जब आप स्वस्थ हैं। जब आप स्वस्थ हैं तो आप वो सारी प्रिकॉशंस ऑब्जर्व करें जो कि सरकारी तंत्र में, अखबारों में, मीडिया में इतने समय से बताई गई हैं। जिसका मतलब आप साफ सुथरे होके जाएं। आप अपना खांसी जुकाम कुछ भी अगर पुरानी तकलीफ भी है उसमें आप उसमें ना जाएं। और अगर आप मास्क लगाते हैं, ठीक तरह से मास्क लगाएं, मुंह और नाक को कवर करें। घर में बना मास्क को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइड से चारों तरफ से वो कवर करें। चश्मा आप पहनते हैं, चश्मा आप पहने, लेकिन साफ चश्मा पहन के जाइए। अपना फेस, हाथ, पैर, मुंह धो के जाइए। जब आप वहां जाते हैं तो आपको ये देखना है कि रास्ते में आप कोई अननेसेसरी चीजों को ना छुएं। हो सकता है आप टैक्सी से जाएं, हो सकता है आप स्कूटर से जाएं, हो सकता है आप बस से जाएं। जैसे भी आप जाएंगे उसमें आप कोई चीज अननेसेसरी ना छुएं और किसी भी जगह पे आप बहुत ज्यादा अननेसेसरी समय ना व्यतीत करें। जितना कम से कम समय में आप आगे जा बढ़ सकते हैं वो बढ़ जाए। और यही ऑब्जर्वेशन जो है आपको उसके अंदर, सेंटर के अंदर आपको लेनी पड़ेगी। ये ध्यान रखें कि जिस कमरे में, हॉल में आप बैठे हैं उसमें वेंटिलेशन हो। बिना वेंटिलेशन के कमरे में भी खतरा बढ़ जाता है। और जब आप उसके बाद खत्म करते हैं तो आप जो चीज आपने सैनिटरी ये टिश्यू पेपर या कोई चीज इस्तेमाल करिए, उसको ठीक तरह से डिस्पोज ऑफ करिए। वापस आते हुए अगर आप वहां हाथ धो सकते हैं तो आप धो लीजिए साबुन पानी से। और जब वापस आते हैं तो अननेसेसरी किसी चीज को छूना नहीं है। और इस बीच में जब जा रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं और आ रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखिए कि किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है। लोगों को लगता है कि जो खांसने वाले हैं सिर्फ वही बीमारी फैलाते हैं। ऐसा नहीं है। जब हम सांस लेते हैं, सांस के साथ ये वायरस आता है। और जब हम बात करते हैं तो और ज्यादा वायरस आता है, और डीप ब्रीदिंग करते हैं तो और ज्यादा आता है। तो किसी से डायरेक्टली फेस टू फेस बात ना करें, जितनी कम से कम हो बात करें। और अगर बात करनी है आप 90 डिग्रीज पे टर्न करके बात करें। जब आप वापस आ जाएं तो बेहतर ये रहेगा, क्योंकि आप कई घंटे बाहर बिता चुके होंगे, कि आप अपने कपड़े उतार के धो दीजिए और अपने आप नहा लीजिए साबुन पानी से, जिससे कि सब कुछ साफ हो जाएगा।
और अपना मास्क भी उसमें। जी, बहुत विस्तार से आपने बताया है ये, Very इससे हम important. समझ सकते हैं कि जो छात्र हैं जिनके मन में ये टेंशन है, उनकी ये टेंशन जरूर दूर हो जाएगी कि क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर कंपानी फेसबुक पेज पर एक और सवाल आया है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी सरकारी फैसिलिटीज हैं जहां पर एंटीबॉडी टेस्ट हो सकता है। एंटीबॉडी टेस्ट कई अस्पतालों में किया जा रहा है, तो एग्जैक्टली मुझे ये मालूम नहीं कि कौन सी है, वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आईसीएमआर की वेबसाइट पे कि कहाँ कहाँ एंटीबॉडी टेस्ट किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से वो चेकअप कर सकते हैं। जी, और एक और बात ये पूछ रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर क्या अलग अलग तरीके से कोविड-19 संक्रमण फैलता है? डॉक्टर कंपानी इसका भी जवाब दे दें जरा। अलग अलग जगहों से आपका क्या मतलब है? यानी कि अलग अलग स्थानों में, पब्लिक प्लेसेस पे हैं आप, बंद जगहों के ऊपर हैं आप, तो ऐसे अलग अलग स्थानों पर किस तरीके से कोविड-19 फैलता है? जैसे अमूमन कहा जाता है कि जो बंद जगह है जहां एयर कंडीशनर ज्यादा चलता है वहां पर संक्रमण के लिए आपको ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए, हवादार जगह, इस तरीके का सवाल है ये। हाँ, देखिए ऐसा है, मेनली तो ये एयरबोर्न है। जो एयरबोर्न से कोई खांसता है या छींकता है तो उसकी जो सिक्रीशंस होती हैं, अगर खासकर आप दोनों ने मास्क नहीं पहना हो तो वो सिक्रीशन से एक से दूसरे आदमी को फैल जाता है। दूसरा है कि ये जो वायरस है, जो चीजें हैं, सरफेसेस हैं, उनमें भी रह जाता है, तो ये हर सरफेस से वेरी करता है कि क्या टाइप का सरफेस है। तो उस सरफेस में ये 9 दिन तक रह सकता है वायरस। इसीलिए हम कहते हैं कि हम डोर्स के हैंडल्स को सैनिटाइज करते हैं, क्योंकि डोर्स के हैंडल्स, जैसे आपने छींका है या खांसा है तो आप डोर्स के हैंडल्स पे के सामने हैं तो उन पे वायरस रह सकता है। डॉक्टर कंपानी जी, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन हाँ, अपने दर्शकों को यहाँ पर ये जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि जहां पर भी आप पब्लिक प्लेसेस में जाएं तो कम जगहों को छुएं, लेकिन साथ ही साथ खुले हवादार जगहों पर अगर आप हैं तो वो आप ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात की फेस मास्क जरूर पहने और 2 गज की दूरी का भी प्रयोग जरूर करें। यहाँ पे वक्त कम है, लेकिन डॉक्टर नरेश और डॉक्टर कंपानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इन तमाम सवालों के और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। नमस्कार। Pleasure. इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्ते।